السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مجسمے مساوات کی 216 فٹ مورتی قوم کے نام معنون، وزیر اعظم نریندر مودی نے نقاب کشائی انجام دی، خصوصی پوجا کا اہتمام۔ زرعی تحقیقات میں ایگریسیٹ کا اہم رول، 50 سالہ تقاریب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت، آئندہ 25 سالہ مشن پر دی توجہ۔ بنیاد پرستی کے بڑھتے ہوئے خطرے پر ہوش کے ناخن لے ورنہ قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی، یوگی حکومت کو بیرسٹر ویسک نے کیا خبردار۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے ممنوعہ گٹکے اور تمباکو کی فروخت میں ملوث 2 ٹولیوں کو کیا بے نقاب، 7 افراد ہوئے گرفتار، تقریباً 15 لاکھ روپے کی ممنوعہ اشیاء ضبط۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شمس آباد کے منچنتلا مجسمہ مساوات رامانوجم کے 216 فٹ طویل مورتی کی نقاب کشائی انجام دیتے ہوئے اسے قوم کو معنون کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے یاگشالہ اور وہاں پر تعمیر کیے گئے 108 مندروں کا مشاہدہ کیا اور خصوصی پوجا بھی کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انسانی راہ دکھانے والے رامانوجم کی مورتی کے ذریعے بھارت کو پیغام دے رہا ہے۔ رامانوجم کی تعلیمات کو آگے آنے والی نسلوں میں عام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ملکی عوام اور عالمی سطح پر رامانوجم کے پھیلے بھکتوں کو مبارکباد دی۔ رامانوجم نے سماجی سدھار کے لیے دلتوں اور پچھڑے طبقات کو گلے لگایا تھا۔ 1000 سال پہلے ہی انہوں نے چھوت چھات کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ وزیر اعظم نے ان کی دیگر خدمات پر بھی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر گورنر تملسائی سندراجن، مرکزی وزیر کشن ریڈی، چناچیرا سوامی اور دیگر موجود تھے۔ وزیر اعظم کے پروگرام میں وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے جمعہ کے دن اطلاع دی تھی کہ ان کے بجائے وزیر ٹی سرینواس یادو خیر مقدم اور وداعی تقاریب میں وزیر اعلیٰ کی نمائندگی کریں گے۔ تاہم ہفتے کی صبح کو اطلاع دی گئی کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے تمام پروگراموں میں شریک ہوں گے۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی سرکاری طور پر اطلاع دی گئی کہ وزیر اعلیٰ کو بخار ہے، لہٰذا وہ کسی بھی پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوپہر 2 بجے کے بعد شمس آباد ایئرپورٹ پہنچے، جہاں پر ریاستی گورنر تملسائی سندراجن، مرکزی وزیر کشن ریڈی، ریاستی وزیر سرینواس یادو، ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار، DGP مہندر ریڈی، حیدرآباد کمشنر CV آنند کے علاوہ دیگر نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شمس آباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایگریسیٹ کے پروگرام کے لیے روانہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی عدم شرکت کو لے کر مختلف قیاس آرائیاں شروع ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی طبیعت واقعی خراب ہے یا پھر سیاسی بخار ہے، کیونکہ مرکزی بجٹ پیش ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ نے سخت لہجے میں مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا تھا۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हैदराबाद के पटनचेरू में एक्रिसैट की गोल्डन जुबली तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने एक्रिसैट के साइंसदानों और अमले को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो एक्रिसैट अपने क़याम के 75 साल मनाएगा। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपने आइंदा 25 सालों के लिए नए मकासद रखे हैं, उन पर काम करना शुरू हो चुका है। वैसे ही अगले 25 साल एक्रिसैट के लिए भी इतने ही अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक्रिसैट के पास 50 साल का तजुर्बा है। इन 5 दहाइयों में एक्रिसैट ने हिंदुस्तान के बशमूल दुनिया के बड़े हिस्से में ज़रई शोबे में मदद की है। एक्रिसैट की रिसर्च और टेक्नोलॉजी ने मुश्किल हालात में खेती को आसान बनाया। उनका कहना था कि आज इन्होंने जिस नुमाइश का मुशाहिदा किया है, जहां पर टेक्नोलॉजी को नुमाया किया गया था, इससे एक्रिसैट की टेक्नोलॉजी और इसकी सलाहियत वाज़ेह नज़र आती है। वज़ीर आज़म ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़रई सहूलतों को मौसर बनाने एक्रिसैट की खिदमात की सताइश की। इन्होंने इस ज़रई तहक़ीक़ाती लोगों की निकाब कुशाई और एक ख़ुसूसी स्टैम्प की इजराई अंजाम दी। मुख्तलिफ फसलों की तरक्की, मुतनव्वो ज़रई सरगर्मियाँ, मवेशी पालन को मरबूत करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा कि 2070 तक हिंदुस्तान सिफर आलूदगी का निशाना रखता है। इन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो इन 80% किसानों पर होनी चाहिए जो छोटे हैं। इन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर, मसनूई ज़हानत, ड्रोन टेक्नोलॉजी किसानों को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक अहम पेशरफ्त है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मोदी ने एक्रिसैट में नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस नुमाइश में ज़रई शोबे को और भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसे नुमाया किया गया। एक्रिसैट के साइंसदानों की तरफ से वज़ीर आज़म को इस नुमाइश से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के अलावा मरकज़ी वज़ीरा नरेंद्र सिंह तोमर और किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुजस्से मसावात की निकाब कुशाई के लिए हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर सड़क के दोनों जानिब तेलंगाना के नौजवानों ने खड़े होकर वज़ीर आज़म के काफिले के गुजरने के वक्त बैनर्स थाम कर मुतालबा किया कि रियासत के लिए दरकार फंड्स फराहम करते हुए इंसाफ करे। TRS के तमाम वज़रा और अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को ट्वीट करते हुए फंड्स फराहम करने का मुतालबा किया। नौजवानों ने जो बैनर्स थाम रखे थे, इनमें NDRF, मेट्रो रेल तालीम, रेल कोच फैक्ट्री, ITIR, हल्दी बोर्ड, आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने, बैरम स्टील फैक्ट्री, तेलंगाना के साथ फंड्स की इजराई में नाइंसाफ़ी की शिकायत की गई है। बैनर्स का उन्वान था कि तेलंगाना के साथ मसावात कहाँ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के हेलीकॉप्टर को उत्तर प्रदेश के इलाके लोनी की एक रैली में लैंडिंग की इजाज़त न दिए जाने की इत्तला मिली है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि जो रैली मनसूख हुई है, इसकी वजह क्या है, इसका पता जल्द चल जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन पर हमले की मजम्मत और फिर ये कहे जाने पर कि बैरिस्टर अवीसी को अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए, शदीद रद्द अमल का इजहार किया। सदर मजलिस का कहना था कि वज़ीर आला होते हुए इस तरह के हमले को मुनसिफाना नहीं करार दिया जाना चाहिए। वो तकरीर क्या करते हैं, ये कोई वज़ीर आला इसके बारे में तय नहीं कर सकता, बल्कि मुल्क का दस्तूर व कानून इस बारे में तय कर सकते हैं। अगर दस्तूर के दायरे में कोई बात होती है तो वो सही है। योगी हुकूमत की जानिब से बाज़ नौजवानों के खिलाफ NSA का हवाला देते हुए बैरिस्टर अवीसी ने कहा है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने खबरदार किया कि बुनियाद परस्ती के बढ़ते हुए खतरे पर होश के नाखून ले वरना कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी। फ़िरक़ा परस्ती दहशतगर्दी में तब्दील हो सकती है। नहीं, एक रैली तो है, वहीं जा रहे हैं।
दो क्यों रैली कैंसिल हुई वो नहीं मालूम, पता चल जाएगा। अब वो एक मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अगर जस्टिफाई करेंगे एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले को, अगर हमने कुछ बात कही है तो आप बताइए क्या कहा है, मीडिया को बताइए। ये आप नहीं तय कर सकते ना, ये तो संविधान और कानून तय करेगा कि हमने, कोई अगर कहता है संविधान के दायरे में है तो सही है, आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है। चौथी बात, हम बीजेपी पार्टी को और मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो हमने कल पार्लियामेंट में कहा, कि आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है, इस पर गौर। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने गजवेल पुलिस स्टेशन में वजीर आला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर हफ्ते के दिन रियासत के तमाम पुलिस स्टेशंस में केस दर्ज करने का ऐलान किया गया था। रेवंत रेड्डी ने गजवेल पुलिस स्टेशन में केसीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 75 साल से अवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने में दस्तूर नाकाम रहा है, इसलिए मौजूदा दस्तूर को मनसूख करते हुए नया दस्तूर लिखने वज़ीर आला का बयान मुल्क के साथ गद्दारी के तहत आता है। इन्होंने कहा कि मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का पुलिस से मुतालबा किया गया है। पुलिस स्टेशन केसीआई को प्रशांत रेड्डी ने दस्तूरी किताब भी दी। सदर पीसीसी के अलावा रियासती पुलिस स्टेशन में केसीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। तेलंगाना आरटीसी की तरफ से सेंट्रल बस स्टेशन सीबीएस से एमजीबीएस डिपो के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया है। पहले एक गाड़ी से इस खिदमत का आगाज किया गया था, अब 2 गाड़ियां दस्तयाब रहेंगी। 4TV ने अवाम की सहूलत के लिए इस खबर को नशर किया था। आरटीसी के एमडी सजनार ने 4TV की सताइश की और कहा कि 4TV ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, इस तशहीर से अवाम को काफ़ी सहूलत होगी। टीएसआरटीसी मैनेज की तरफ से हफीज़ हमारा 4TV को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि एक अच्छा सा स्टोरी करे है। हम लोग जब लास्ट टाइम एमजीबीएस विज़िट करे तो बहुत सारे लोग बहुत दिक्कत हो रहे थे कि लगेज और बच्चों को लेके जो गुजर लोग हैं कि वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। सो उनके लिए एक इलेक्ट्रिक बस व्हीकल लगाए तो बहुत अच्छा रहता करके हम लोग ई बग्गी को स्टार्ट किया। अभी आज सुबह ही 4 बग्गी को फिर अगेन हम लोग सैंक्शन किया। एक एमजीबीएस प्लेटफॉर्म के अंदर भी एक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को एक सैंक्शन किया और जेबीएस वरंगल और करीमनगर के लिए भी एक व्हीकल सैंक्शन किया है। हैदराबाद वाटर वर्क्स की तरफ से इत्तला दी गई है कि दुर्गानगर टैंक के करीब मेन लाइन और वॉल्व के मरम्मती काम की वजह से मेलारदियोपल्ली में 2 दिनों तक पानी की सरबराही बंद रहेगी। वाटर वर्क्स के प्रेस नोट के मुताबिक मुगल कॉलोनी, पल्ले चेरू, मेलारदियोपल्ली देहात, मिलन कॉलोनी, अहमद नगर, अली नगर, सुबहान कॉलोनी फेस 1 और 2, पैलेस कॉलोनी, TNGOs कॉलोनी, साई कॉलोनी, आपको कॉलोनी, गणेश नगर और आदर्श नगर में पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सलामती के लिए मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में मस्जिद तौलीद कमेटी के अरकान और मस्जिद के तहत चलाए जाने वाले दीनी मदरसे के तलबा व तालिबात ने खुसूसी दुआया महफिल में शिरकत की। कुरान ख्वानी और आयत मुक़द्दसा का विर्द किया गया। सदर कमेटी मौलाना सैयद मुनूरुद्दीन अहमद मुख्तार की निगरानी में मुनक्किदा इस दुआया में
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सलामती के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गईं। उलमा इकराम व सरकर्दा शहरियों ने भी इसमें शिरकत की। उर्स हज़रत ख्वाजा अजमेरी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में लाड बाजार के मुजीब बैंगल्स इंतज़ामिया की तरफ से हर साल की तरह चादर रवाना की गई है। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बताया कि ये चादर इतवार की सुबह रवाना होगी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा ताजरीन लाड बाजार की कसीर तादाद मौजूद थी। मेरे शरीफ के उर्स मुबारक में हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हर साल की तरह इस साल भी लाड बाजार की ताजरों की जानिब से मुजीब बैंगल्स के लोग चादर गुल का नजराना पेश करते हैं। गिलाफ मुबारक रवाना होता है। हमेशा मरहूम जनाब मंजूर अहमद साहब रुकन शुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चादर गिलाफ मुबारक के लिए एहतमाम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके फर्जंद मुजीब साहब कर रहे हैं। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साहब और जनाब मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर शाली बंडा गिलाफ मुबारक कल सुबह रवाना हो रहा है और बारगाह करीम नवाज में उसको नजराने अकीदत के तौर पर ताजरान लाड बाजार की जानिब से मुजीब बैंगल्स के लोग इसको पेश करेंगे। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सलामती और उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए रैन बाजार में दुआया महफिल का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस मौके पर अवाम से सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और अम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए मुसलसल दुआओं की अपील की। इन्होंने कहा कि मजलिस ने हर बार अवाम की दुआओं से कामयाबी हासिल की है। असेंबली हल्के के बदली डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज कॉरपोरेटर बादशाह साहब और उनके वालिद की तरफ से नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की सलामती और तराजी उम्र के लिए आयत करीमा का ख़त्म रखा गया था और अब ख़त्म का अख्ताम हुआ। उसके बाद दुआ की गई नकीब मिल्लत की सलामती और तराजी उम्र के लिए, मजलिस की कामयाबी के लिए, हबीब मिल्लत की उम्र दराजी के लिए, तमाम लोगों की सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की गई। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी मरहूम की शुरू करदा उर्दू मीडियम तुलबा की तालीमी इमदाद की स्कीम के तहत लाखों तुलबा इस्तिफादा कर चुके हैं। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि रियासत के तमाम अजला में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में स्कीम पर अमल आवरी जारी है। उर्दू मीडियम के तुलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन के अलावा फीस की अदायगी और तालीमी किट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट अहमद बलाला ने निज़ामाबाद और बोधन के उर्दू मीडियम के तुलबा में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम अमल में लाई। निज़ामाबाद में 320, कामारेड्डी में 200, आरमोर में 150 और बोधन में 250 ऑल इन वन गाइड्स तुलबा में तकसीम किए गए। निज़ामाबाद के मजलिस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद रहे। तुलबा के सरपरस्तों ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर बल्दिया रवि किरण और एडिशनल जोनल कमिश्नर अंकशाफ अली इंकशाफ अली के साथ बलकापुर और अफजल सागर नालों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि बलकापुर नाले का 6 करोड़ रुपए की लागत से और अफजल सागर नाले का 10 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि अफजल सागर नाले का काम शुरू हुआ है, जबकि बलकापुर नाले के कामों में बाज़ मुकामी अफराद के मकानात रुकावट बने हुए हैं। इन मकानों को मुनहदिम किया जाएगा और इसका मुआवजा भी उन्हें दिया जाएगा। अलावाजी ऐसे अफराद जिनकी अराजी नाले की कुशादगी में आ गई, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। उनका कहना था कि 2 हफ्तों के अंदर इस काम को शुरू किया जाएगा। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मकानात के मालिकान
और अराजी के मालिकीन को नोटिसें जारी की गई हैं। मज़कूरा काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि मकीनों को बारिश के मौसम में राहत हो सके। इन्होंने मज़ीद बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन अवैसी ने नालों के कामों के लिए गैर मामूली कोशिशें की हैं। इस मौके पर बलदिया के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स मौजूद थे। नामपल्ली फैप्सी के पास जुमा की रात ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लग गई। अपार्टमेंट से ट्रांसफार्मर से मुत्तसिल होने की वजह से मकीनों में खौफ का माहौल देखा गया और कई मकीन बाहर निकल आए। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी गई और फिर फायर इंजन के जरिए आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बर्क़ी हुक्काम को भी तलब कर लिया गया था। किसी भी तरह का कोई जारी नुकसान नहीं हुआ है। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम सतह पर बच्चा मजदूरी के खात्मे पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस ने मेरचल जिले के किसरा मंडल में उड़िया और मराठी स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मजदूर तबके के बच्चों को तालीम की फराहमी नागुज़ीर है, इसलिए तामीराती साइट के पास स्कूल का क़याम खुश आइन है। इन्होंने बताया कि थीमापल्ली में पहली बार मराठी ज़बान के स्कूल का क़याम अमल में लाया गया ताकि मजदूरों के बच्चों को तालीम दी जा सके। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने एडिट एक्शन इंटरनेशनल तंजीम की सताइश की। महेश भागवत ने कहा है कि जो मजदूर काम के लिए हैदराबाद या इसके अतराफ व अकनाफ में आते हैं, उनके लिए इस तरह के स्कूल्स काफ़ी मददगार साबित होंगे। साउथ जोन टास्क फोर्स ने ममनुआ गुटखा और तंबाकू की फरोख्त में मुलविस 2 टोलियों के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पहली टोली के बारे में बताया कि फराजुद्दीन रैन बाजार में जावेद किराना स्टोर चलाया करता था। कम आमदनी की वजह से इसने ममनुआ गुटखा और तंबाकू की फरोख्त का मंसूबा बनाया। फराज आर तंबाकू अशिया फराहम करने वाले जाकिर और लतीफ के राब्ते में आया। इसके अलावा फराज देवाराम कमावत और सुनील कमावत से बैरूनी सिगरेट हासिल करने लगा। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 5 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा और तंबाकू जब्त कर लिया। इस टोली के मजीद 2 अरकान मोहम्मद अली और हामिद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने एक और टोली के 2 अरकान को इरफान और समीर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियती ममनुआ गुटखा और तंबाकू जब्त कर लिया। इस टोली के 4 अरकान सलीम, पुरुषोत्तम, अहमद, वाजिद और अतीक मफरूर बताए गए हैं। कामाठीपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ उस्मान बाग के एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। निचले हिस्से में मुकीम मकीनों ने बताया कि वो पहली मंजिल पर गए थे, लेकिन अचानक नीचे हिस्से में आग लग गई। ऊपरी मंजिल के मकीनों को बाहिफाजत मुत्तसिल मकान मुंतकिल किया गया, लेकिन आग लगने के इस वाक़े में अहम दस्तावेज़ात जलकर खाकिस्तर हो गए। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
मुजस्समे मसावात की 216 फीट मूर्ति कौम के नाम मानून। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निकाब कुशाई अंजाम दी। खुसूसी पूजा का एहतमाम। ज़राई तहक़ीक़ात में एक्रिसैट का अहम रोल। 50 साला तकारीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत। आइंदा 25 साला मिशन पर दी तवज्जो। बुनियाद परस्ती के बढ़ते हुए खतरे पर होश के नाखून ले, वरना कानून की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। योगी हुकूमत को बैरिस्टर अभिषेक ने किया खबरदार। साउथ जोन टास्क फोर्स ने ममनुआ गुटखे और तंबाकू की फरोख्त में मुलविस 2 टोलियों को किया बेनकाब। 7 अफराद हुए गिरफ्तार। तकरीबन 15 लाख रुपए की ममनुआ अशिया जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।